Okay, shall I start now? So the things are clear now up to यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, प्लीज पूछते रहो. So सबसे पहले I started consistency of limits. Consistency of limits means it is the resistance to the deformation of soil. It is resistance to the deformation of soil. आओ बेटा जल्दी आओ, कितना देर करते हैं. ओके मतलब आप सॉइल को मोल्ड कर रहे हैं तो उसको जो रेजिस्टेंस होता है ना, इट इज कॉल्ड व्हाट इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. Okay, so consistency, Sonali, you were asking where it is more. So solid, definitely it is more in solid. It go on decreasing when it is in liquid state, but feasibility is more in liquid state. Feasibility is more in liquid state. Then what I told you, the consistency is all for only fine grained soils. This is all for only fine grained soils, and consistency is nothing but it is the function of water content. It is the function of water content. मतलब water content आप change करते जा रहे हैं तो it is called consistency of the soil. And there are three limits: liquid limit, plastic limit, and liquid limit. These are defined by Atterberg. Therefore, these all three limits are called Atterberg limits. These all three are called Atterberg limits. Okay. So now there are four stages. धीरे धीरे आते रहते हैं. There are four states of consistency: solid state, semi-solid state, plastic state, and liquid state. और solid states में क्या होता, यहाँ पर वैल्यूम चेंज नहीं होता. यहाँ पर वैल्यूम चेंज नहीं होता कब तक, जब तक डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 नहीं होता या 100% नहीं होता. ये आपको क्लियर हो ना, यहाँ पर वैल्यूम चेंज नहीं हो रहा. इसके बाद वैल्यूम चेंज होता, हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ गया है, लेकिन डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं बढ़ता, पानी का क्वांटिटी बढ़ते जाता और पानी का क्वांटिटी यहाँ तक वाइड्स में चला जाता, यहाँ ऊपर बहते रहता. और दिस इज देयर इज चेंज इन वैल्यू. देयर इज चेंज इन वैल्यू. सी हियर फॉर श्रिंकेज लिमिट द वैल्यू इज कांस्टेंट. हियर सेम इट इज. फॉर प्लास्टिक लिमिट द वैल्यू इज Vp, and for liquid limit this is VL. So now what are these limits? These are the limits which are boundary in between plastic and liquid state. It is liquid limit. The boundary between semi-solid state and plastic state is plastic limit, whereas the boundary in between solid state and semi-solid state is a shrinkage limit. And at the shrinkage limit, degree of saturation is 1 or 100%. Degree of 1 or 100%. अब देखिए, this is called
स्लोप, अगर से आप इसका स्लोप निकालेंगे इस लाइन का, ये स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका स्लोप कैसा निकाल सकते हैं, मैं इसके लिए और एक फिगर कल बताता हूं आपको, मेरे पास अब बोर्ड नहीं है। यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, तो यहाँ एंगल थीटा ले लो, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय बेस, तो इसका अपोजिट क्या होता है एंगल का, VP माइनस VD, VP माइनस VD डिवाइड बाय WP माइनस WS, सो tan थीटा इज इक्वल टू VP माइनस VD, है ना, ये टोटल हाइट VP है, उसमें से VD माइनस करो तो ये हाइट मिल जाता है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू VP माइनस VD डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ होना, दैट इज WP माइनस WS। आप यहां पर भी एंगल थीटा लेके कर सकते हैं, दिस इज VL माइनस VP डिवाइडेड बाय WL माइनस WP, और आप ये इधर भी लेके कर सकते हैं, जो भी अगर से आपको ये वैल्यू मालूम रहा तो दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, यहां पर भी निकालो आप, यहां पर भी निकालो, दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द ग्राफ एंड फोर स्टेट्स ऑफ, दिस अबाउट ग्राफ एंड फोर स्टेट्स ऑफ consistency and three limits of consistency. These are liquid limit, plastic limit and shrinkage limit. All these are functions of water content. ठीक है, now I will explain one by one what is liquid limit, what is plastic limit, what is shrinkage limit. Okay, one by one we shall study. First of all, liquid limit. What is liquid limit? मैं आपको अभी बताया था, जो प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। तो एक्चुअली लिक्विड लिमिट होता क्या है, मतलब कितना हो सकता है, आप कैसा बोल सकते हैं इसको। लिक्विड लिमिट इज डिनोटेड बाय WL एंड इट इज द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ कंसिस्टेंसी। It is the minimum water content at which the soil mass flows like a liquid. So this is the definition of liquid limit. So liquid limit is denoted by WL. Liquid limit is denoted by WL and it is the boundary between plastic state and liquid state. It is the boundary between plastic state and liquid states of consistency, and it is the minimum water content at which the soil mass flows like a liquid. It is the minimum water content at which the soil mass flows like a liquid. मतलब मिनिमम पानी अगर से आप उसमें जितना डाल रहे उतना डालने के बाद अगर से वो फ्लो होने स्टार्ट हो जाता तो दैट वाटर कंटेंट इज कॉल्ड liquid limit. So definition याद रखो, it is the minimum water content at which the soil mass flows or behave like a liquid. Flows or behave like a liquid. This is called liquid limit. Clear the things? Okay. So now further it is said that it is defined as the minimum water content at which the soil is still in liquid state but has a small shearing strength against flowing, which can be measured by standard available means. मतलब ये मिनिमम वाटर कंटेंट है, ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जहां पर ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा पानी डालेंगे ना तो पूरा बहने शुरू हो जाता, मिट्टी रहता है नहीं, पानी ज्यादा हो जाता, तो वो लिमिट लिक्विड लिमिट नहीं है, ये मिनिमम वाटर कंटेंट है। मतलब पहले प्लास्टिक स्टेट में रहता, आप और थोड़ा भी पानी बढ़ाए ना तो वो ऐसा लगता कि जैसे कि फ्लो होने वाले में है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है फ्लोइंग का लिक्विड स्टेट का। सो वो लिमिट है लिक्विड लिमिट। उसके बाद और पानी डालते जाओ, अपने आप वो बहते ही जाता, आप और पानी डालोगे मिट्टी नहीं दिखता आपको, पूरा पानी ही बहते रहता। ये अलग बात है कि वो लाल हो जाता पानी पूरा, बट द थिंग इज उतना सारा पानी हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए उतना ही पानी, मिनिमम पानी, जितना डालने के बाद वो प्लास्टिक स्टेट से वो एकदम लिक्विड स्टेट में आता। प्लास्टिक स्टेट क्या है मैं आगे बताता हूं आपको। तो प्लास्टिक स्टेट में आपका सॉइल है, आप में थोड़ा पानी डालो, वेदर इट इज फ्लोइंग नो, और थोड़ा पानी डालो, वेदर इट इज फ्लोइंग नो, और थोड़ा डालो नो, बट एक और थोड़ा डालती जैसे वो इट बिहेव्स लाइक अ लिक्विड। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा लिक्विड हो गया, जस्ट इट स्टार्ट्स गोइंग टू बिहेव लाइक अ लिक्विड। वो पूरी तरह लिक्विड नहीं हुआ, it just started behaving like a liquid and it has still little shear strength. अगर से आप पूरा पानी लेंगे तो shear strength जीरो रहता, उसमें कोई shear strength रहता ही नहीं, लेकिन यहां पर थोड़ा shear strength है। आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े नहीं, विस्कोसिटी, shear strength, टाउ, अलग अलग टाइप के, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी,
ये सब पढ़े आप, तो ये सब उसी का फंक्शन है। ओके, तो ये उतना ही पानी है, ये मिनिमम पानी है जिसको डालने के बाद soil behaves as if it is a liquid and just starts to flowing and it has still the shearing strength. वो कितना रहता है वो भी मैं आगे बताता हूं आपको. तो it has still the shearing strength and which can be measured by flowing, that अलग थी. तो इसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट. ऐसा नहीं बोलेंगे आप मिट्टी लाए और एक साथ पूरा सारा पानी डाल दिए और वो बहने शुरू करा, सर दिस इज द लिक्विड लिमिट. ऐसा नहीं हो सकता. पहले तो आपका सॉइल प्लास्टिक स्टेट में होना चाहिए और उसमें आप पानी थोड़ा 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 ऐड करते जाओ और जो ही वो एज अ लिक्विड के जैसा बिहेव करने शुरू हो जाता. तो हम लिक्विड लिमिट कैसा निकालना, लैब में हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी है, मैं आपको बताता हूँ, उसको अलग चीज है. तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको. जैसे ही हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करते जाते और वो एज इफ इट बिहेव्स लाइक अ लिक्विड, स्टिल ये पूरा लिक्विड नहीं है, वो इट जस्ट स्टार्टिंग टू बिहेव लाइक अ लिक्विड, and that particular limit is called liquid limit. And remember, at this point also it has shearing strength. It has shearing strength. हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए लिक्विड लिमिट के. थर्ड वन, with reference to the standard liquid limit device, it is defined as the minimum water content at which a part of soil cut by a groove of standard dimensions will flow together for a distance of 12 mm or half inch under an impact of 25 flows in the device. तो ये समझाने के लिए मुझे आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल कराना पड़ता. मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको, रिकॉर्ड करके बताऊंगा आगे आगे, तो उस वक्त मालूम होता. देखिए बहुत सारी चीजें मैं, देखिए इससे पहले भी कुछ चीजें मैं जो प्रैक्टिकल रिलेटेड है टोटली, वो प्रैक्टिकल क्लास में थ्योरी भी लूंगा, प्रैक्टिकल भी लूंगा. जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट बताया आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी के और मेथड्स है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा. लिक्विड लिमिट सिर्फ आपको मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, डेरिवेशन कर रहा हूँ, उसके एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ. प्लास्टिक लिमिट के भी एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ. जो भी इनका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, इनको कैसा फाइंड आउट करना है, वो मैं प्रैक्टिकल, थ्योरी में भी है आपको, प्रैक्टिकल में भी है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल में थ्योरी भी कवर कर लूंगा. आई विल कवर इन थ्योरी आल्सो. यस, वेरी गुड श्रेयस, बिल्कुल करेक्ट बेटा, you are right. I think most of you are, if you are from diploma side, you have learned it. तो एक apparatus रहता है, ये डिप्लोमा वालों को मालूम होता. एक एसेवेंट जो apparatus है, ये apparatus को हम जब लिक्विड लिमिट के लेते और ये कैसा कप के जैसा रहता है, ये सब मैं बताता हूँ आपको. मैं आपको कितना एक्सप्लेन करूँ तो भी समझ में नहीं आता, डिप्लोमा वाले करे उनको मालूम होता. उसमें हम सॉइल लेते, वाटर कंटेंट ऐड करके उसको ब्लोज देते जाते और 25 ब्लोज देने के बाद वो 12 mm चेंज होना, उसके बाद ग्राफ ऐड करते, ग्राफ करके हम लिक्विड लिमिट निकालते. तो ये एवरीथिंग आई विल टीच इन द लैब क्लास ओनली. तो यहाँ पर मैं आपको जो भी बताऊंगा, कैसलग्राइंडे बोल के एक जो टेक्निकलिस्ट है वो करा हुआ है एक्सपेरिमेंट. तो इसको 2 तरीके से करते हैं. बोथ दी थिंग्स आई विल टीच इन द लैब क्लास. ये तो आपको मैं यहाँ इतना ही बोल सकता हूँ कि इसमें एक्सपेरिमेंट जब आप करते रहते, आप उनको 25 ब्लोज देना है, उसको घुमाते गए तो एक बार ऊपर जाता और फिर नीचे गिरता. एक ब्लो हो गया, ऐसा 2 ब्लो, 3 ब्लो, 4 ब्लो. ऐसा करते समय हम ग्रू से सॉइल को चेंज करते, और दोनों का डिस्टेंस कितना होना, 12 mm होना या हाफ इंच होना. So that particular value we can calculate again by drawing the semi-log graph where we find the slope, all these things, flow index सभी निकाल सकते हैं हम. There it is liquid limit. So for the time being, just this point, I don't think you will understood this one. तो यहाँ पर ये आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, मैं बाद में समझाता हूँ. आपको इतना तो मालूम हुआ ना कि डेफिनेशन क्या है इसका और ये डेफिनेशन क्या है, ये 2 चीजें मैं आपको बता चुका हूँ. At liquid limit, all soils have nearly negligible shear strength of 2.7 kilonewton per meter square approximately. Of course, at the liquid limit, the shear strength is negligible. मतलब वो एक्चुअली जब लिक्विड हो गया तो वहां shear strength आता ही नहीं. shear strength प्लास्टिक में रहता, सेमी सॉलिड में रहता, सॉलिड में तो बहुत सारा रहता, सॉलिड में तो बहुत सारा रहता, लेकिन जैसे जैसे लिक्विड, और जब लिक्विड लिमिट के बाद और आप पानी डालते जाओ, जीरो हो जाता. तो एट द पॉइंट ऑफ लिक्विड लिमिट, दिस इज द shear strength. You should remember this. This may be asked in MCQs. So at liquid limit,
all soils having nearly negligible shear strength of 2.7 kilonewton per meter square approximately. एक सेंटेंस लिख लो. At liquid limit the shear strength is 2.7 kilonewton per meter square. ऐसी चीजों को जब आप नोट्स बनाते रेड पेन से अंडरलाइन करना. एमसीक्यूज में पूछता, आपको जो गेट के एग्जाम्स रहते उसमें पूछ सकता. ठीक है. तो at liquid limit all soils have nearly negligible shear strength of 2.7 kilonewton per meter square approximately. Got it? Clear the things? Okay. I will go for next one now. Compressibility of soil directly depends on liquid limits. Compressibility of soil directly depends on liquid limits. Greater the liquid limit, greater is the compressibility of the soil. मतलब लिक्विड लिमिट जितना रहा उतना कॉम्प्रेसिबिलिटी रहता. आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये बढ़ गया तो वो भी बढ़ता, वो घट गया तो ये भी घट जाता. तो व्हाट आई मीन इज लिक्विड लिमिट एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी. कॉम्प्रेसिबिलिटी मींस हाउ मच यू कैन कॉम्प्रेस इट. ओके. सो कॉम्प्रेसिबिलिटी और ये जो है ना लिक्विड लिमिट, these are directly proportional to each other. These are directly proportional to each other. मतलब ये बढ़ गया तो वो भी बढ़ता, और वो बढ़ गया तो ये भी बढ़ता. ये घट गया तो वो घटता, ये घट गया तो वो भी. Means they are directly proportional. Suppose if liquid limit is increased, compressibility also increases. If liquid limit is decreased, compressibility also decreases. So this is all about liquid limit. इसमें से कुछ important point आप एक definition लिख लो. बाकी के सब तो मैं नोट्स दे ही देता हूँ आपको. तो इसके फाइंड आउट करने के मेथड्स भी है. मुझे एक्चुअली अभी पढ़ाया तो भी चलता था, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिकल में एक बार करूंगा. फिर दो बार कौन पढ़ाते बैठो. और याद रखिए, मैं आपको लग रहा होगा कि सर बहुत स्लो जा रहे हैं, सिलेबस कम हो रहा हमारा, दूसरे सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा हो गए होंगे. बट द थिंग इज आई वांट, डोंट वरी अबाउट द सिलेबस. यहाँ तो अभी आपका बहुत आगे है. ओके. सो ये जो प्रैक्टिकल है उस वक्त मैं आपको बताऊं. कुछ इसमें डेफिनेशन लिख लो. मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल फ्लोज लाइक अ लिक्विड, एक लिख लो. बाकी का कोई है तो नोट्स दूंगा ही मैं आपको. और जो प्रैक्टिकल का है दैट विल आई विल टीच आफ्टरवर्ड्स. So I hope till now everything is clear to you. What is consistency of soil? What are the four states of consistency? And what are the three limits, Atterberg limits? और three limits में पहला limit में define करा, that is liquid limit. The first limit is liquid limit. Now I will go for second one, that is plastic limit. Next is plastic limit. Now, plastic limit. What is plastic limit? Plastic limit is WP, is denoted by WP, small WP, and is the boundary between semi-solid and plastic states of consistency. It is very clear. So, plastic limit is the denoted by WP, and it is the boundary between semi-solid and plastic states of consistency. Whereas liquid limit is the boundary between plastic and liquid states. Plastic and liquid states. Clear? So this is the plastic limit. This is the limit between semi-solid state and plastic state. Semi-solid state and plastic state. And limit between plastic state and liquid state is liquid limit. Next is, it is also defined as the water content, of course, whether it is liquid limit, plastic limit or shrinkage limit, all are water content only. All are water content only. It is also defined as the water content at which soil would just begin to crumble when rolled into a thread of approximately 3 mm diameter. इसका मतलब क्या है? देखिए, एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, तो हम इसमें प्रैक्टिकल इतना ही है. ये प्रैक्टिकल भी बताऊंगा तो मैं आपको कोई लंबा चौड़ा प्रैक्टिकल है ही नहीं. तो डेफिनेशन से पहले मैं प्रैक्टिकल लूंगा आपको. प्रैक्टिकल में क्या करते हैं हम? फर्स्ट वी टेक द सॉइल
and I will add a little bit water and I will try to roll that soil. Soil को क्या करता हूं मैं, ऐसा पहले तो गोल गोल बना लेता हूं मिट्टी डाल के, उसके बाद उसको रोल करता हूं. सॉइल को रोल रोल करते लंबा सा सिलेंडर के टाइप बनाते जाता हूं. ऐसा रोल करता हूं, बेलन के जैसा, बेलन के शेप के जैसा मैं उसको रोल करते जाता हूं. देखिए मैं जब रोल करते जाता हूं, सॉइल में क्रैक्स नहीं आने चाहिए. आप देखो सॉइल लेके जरा मिट्टी डाल के आप रोल करते जाओ, सॉइल में क्रैक्स आने शुरू हो जाते. जब सॉइल में क्रैक्स आते हुए रहते, जब मिनिमम आपको क्रैक आ रहा तो उसको बंद करो, फिर उसमें थोड़ा मिट्टी डालो और उसको फिर रोल करो, या मतलब नया मिट्टी ले लो, पानी कम करो. तो जब आप रोल करते रहते, उसमें क्रैक्स आने से पहले रोल रोक दो. मतलब वो डायमीटर ऐसा नहीं कि आप बहुत मोटा बना रहे तो उसमें क्रैक आएगा ही नहीं, या बहुत पतला बना दिए तभी भी नहीं आ सकता, ऐसा कुछ वैसा नहीं है. अप्रोक्सीमेटली आपका जो थ्रेड है सॉइल का वो 3 mm होना चाहिए. तो 3 mm के डायमीटर में जब आप सॉइल को रोल कर रहे हैं और उसमें थ्रेड आने से पहले सॉइल का जो वाटर कंटेंट है, एंड दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट. That particular water is called, that water content is called plastic limit. That particular water content is called what? Plastic limit. क्योंकि प्लास्टिसिटी क्या है बोला था मैं आपको, प्लास्टिसिटी में सॉइल का वो स्टेट है जहां पर आप क्रैक्स नहीं आ रहे आपके पास, तो क्रैक्स को होने नहीं देना है. तो क्रैक्स के बगैर जो आता है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल, दैट स्टेट इज प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल. तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सॉइल लेता हूं, सॉइल में थोड़ा वाटर कंटेंट ऐड करता हूं और उसको रोल करते जाता हूं सिलिंड्रिकल टाइप के, बेलन के जैसा, आटे का रोटी बेलन से रोलते ना उस टाइप का, मतलब उतना मोटा नहीं. तो डायमीटर 3 mm का होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली. कैसा डिसाइड करना, हम देख के डिसाइड करते. अप्रोक्सीमेटली 3 mm बोल तो देखो आपके स्केल में कितना आता, उतना मोटा होने तक वाटर कंटेंट और उसमें क्रैक्स नहीं आना, और उसको रोल करते रहो 3 mm रहे. जब अगर से उसमें क्रैक्स नहीं आए तो वो सॉइल सैंपल ले लो, उसका वाटर कंटेंट निकालो लैबोरेटरी में, दैट इज गोइंग टू बी द प्लास्टिक लिमिट. वाटर कंटेंट कैसा निकालना पता है नहीं आप लोगों को, ओवन ड्राइंग मेथड से उसका वेट ले लो, फिर ओवन ड्राई में रखो, फिर ड्राई हो जाता, फिर फॉर्मूला लगा के वाटर कंटेंट निकालो. ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल में भी बता चुका हूँ और डेफिनेशन के टाइम में बता चुका हूँ. सो दिस इज again one more limit, that is plastic limit. This is called plastic limit. So once again I will repeat you, plastic limit is denoted by WP and is the boundary between semi solid and plastic states of consistency, and it can also be defined as whenever the water content at which the soil would just begin to crumble. मतलब आप रोल करते रोते करते अभी उसमें जरा क्रैक आने वाला, वहां जैसा जस्ट इट इज गोइंग टू फ्लो. लिक्विड लिमिट में क्या था, आप पानी ऐड करते जा रहे, अभी वो प्लास्टिक स्टेट में है, और जैसा ही पानी ऐड करते वो फ्लो होने शुरू हो जाता, मतलब फ्लो होने के चांसेस रहते. दैट लिमिट इज लिक्विड लिमिट. तो यहां पर भी आप रोल करते करते एकदम जब क्रम्बल होने के स्टेट पे आया तो पहला क्रैक आपको दिख रहा हलू हलू, तो दैट इज दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट इज, that particular water content is plastic limit. That particular water content is plastic limit. So how to get this water content? This I told you, that particular sample of soil you take its weight, you keep it in the oven, it will get dried, again you get its weight. So water content is equal to WS by WD. That formula you know. From that you can decide what is the plastic limit. What is the plastic limit? Clear the things? So what is liquid limit? What is plastic limit? यहाँ पर भी फिर बोल रहा, it is the minimum water content at which the soil mass can be deformed without cracking. ये practical का definition है और ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं, प्लीज इसको लिख लो. It is the minimum water content at which the soil mass can be deformed without cracking. Please take down this definition. It is the minimum water content at which the soil mass which is the minimum water content at which the soil mass can be deformed without cracking. कुछ डाउट्स है तो पूछो प्लीज. तो मैं फिर चाहता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना कि प्लास्टिक लिमिट एक्चुअली क्या है. रट मार के आप एग्जाम में लिख के पास हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नको, मैंने ऐसा नहीं चाहता. आपको कंसिस्टेंसी का पूरा क्लियर रहना, और ये फर्स्ट चैप्टर आप जितना अच्छी तरह पढ़ लेंगे, आगे के चैप्टर कुछ भी नहीं है. और सिलेबस के बारे में
Again and again I am telling you, maybe you people are thinking, sir, still is in first unit, still in first unit. You don't worry at all. I will complete the syllabus, whole complete syllabus I will revise also, क्योंकि आगे के चैप्टर में इतना सिलेबस भी नहीं है और इतना समझाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सी चीजें पड़ी हुई रहती है। आप सॉइल मैकेनिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें आपको नहीं मालूम रहते, उसमें मुझे डिटेल में जाना पड़ता। ओके, और shall I go for next limit, that is shrinkage limit. Now it is shrinkage limit. So every limit has a boundary. ये तो आप आराम से ग्राफ याद रख के लिख सकते। So shrinkage limit is denoted by WS. Shrinkage limit is denoted by WS. So what is shrinkage limit? Shrinkage limit is defined as WS. Water content at which soil sample changes from semi-solid to solid state is known as shrinkage limit. जो बाउंड्री है बीच में सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच में, दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट. दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट. इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट. इसको देखो प्लीज, ये सबसे बड़ी बात है. It is defined as the maximum water content at which a reduction in water content will not cause a decrease in the volume of soil mass. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो श्रिंकेज लिमिट में क्या होता मालूम है आपको, बताया था मैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लेवल को आता, वहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता. मतलब उस वाटर कंटेंट, वो वाटर कंटेंट आ जाता वहां पर आपके पास कि उसको आप कम करने के बाद भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. It is defined as the maximum water content at which a reduction in water content will not cause a decrease in the volume of soil mass. मालूम हो रहा है बात आपको? ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जहां से आप अगर से पानी का परसेंटेज कम भी करें तो भी उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता. There is not decrease in the volume of the soil mass, and it is called shrinkage limit. It is called shrinkage limit. ठीक है. और one more thing is there. It is the maximum water content जिससे आप कम नहीं कर सकते. और एक भी है, it is the lowest water content at which a soil can still be completely saturated. मतलब ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जहां पर ये सॉइल क्या है, पूरी तरह सैचुरेटेड. मतलब आप मिनिमम वाटर डालने के बाद अगर से सॉइल फुली सैचुरेटेड हो गया, so that limit is called shrinkage limit. तो ये है डेफिनेशन. सो डेफिनेशन से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि लिक्विड लिमिट क्या रहता, प्लास्टिक लिमिट क्या रहता और श्रिंकेज लिमिट क्या रहता है. लिक्विड लिमिट क्या रहता, प्लास्टिक लिमिट क्या रहता और श्रिंकेज लिमिट क्या रहता है. तो ठीक है. सो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, 4 स्टेट्स और 3 लिमिट्स आपको क्लियर है. फिर भी अभी भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछो. एनीबडी कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स. Please, if you have any doubts, what is plastic limit, what is liquid limit, what is shrinkage limit? I will go for next derivation now. तो मैं आपको फिर बताता हूं, 4 स्टेट्स ऑफ कंसिस्टेंसीज है. तो आप लोग प्लीज अपना पूरा नाम लिखो, चुप रोल नंबर लिखो. यस लिखे, एम लिखे, पी लिखे. आई एम अलोइंग यू बट ये बात सही नहीं है. आप लोग अपना रोल नंबर और नाम लिखो ना. क्या तकलीफ हो रही है आपको? अटेंडेंस देने में मेरे को इजी होता. ओके, एक बार और फिर रिपीट करता हूं. देखिए मैं आपको, ये 4 टेस्ट्स है और इन चारों के बीच में जो बाउंड्री है, ओके महेश, आई विल रिपीट, डोंट वरी. उसके ऊपर मैं डिरेक्शन भी कर रहा हूं बेटा, क्लियर रहता. तो ये 4 स्टेट्स है. ये 4 स्टेट्स तो मालूम हो गया आपको, क्लियर. और 4 स्टेट्स के जो बाउंड्रीज है, जब 4 स्टेट्स तो बाउंड्रीज तो 3 ही रहेंगी, लिमिट्स. तो ये लिक्विड लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है, ये श्रिंकेज लिमिट है. ये लिक्विड लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है और ये श्रिंकेज लिमिट है. लिक्विड लिमिट में क्या होता, सॉइल या प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट को जाता, मतलब जस्ट आपको पानी उतना डालते ही वो जस्ट फ्लो होने स्टार्ट करता.
वहां मिनिमम वाटर कंटेंट है जो डालने से वो लिक्विड स्टेट को आने शुरू हो जाता, एंड दैट वाटर कंटेंट इज कॉल्ड, इट बिहेव्स एज इफ इट इज अ लिक्विड। वहां तक लिक्विड नहीं रहता, अभी वो सॉलिड ही रहता, अभी लिक्विड होने वाला रहता, ऐसा नहीं कि पूरा लिक्विड हुआ, लिक्विड होने वाला रहता लेकिन फ्लो होना चालू हो जाता, दैट लिमिट इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट। और लिक्विड लिमिट में स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल रहता, शेयर स्ट्रेंथ, बट 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ रहता बोल के हम मान के चलते। Got it? Now next is the boundary in between semi-solid state and plastic state is plastic limit। तो प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी किसको बोलते हैं? जहां पर सॉइल क्रैक नहीं होता डिफॉर्म होने से पहले, उसको हम प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं। तो प्लास्टिक स्टेट में प्लास्टिक लिमिट भी वो लिमिट है जो क्रैक होने से पहले आता। क्रैक जस्ट अभी क्रैक होने वाला है बोलते ही उससे पहले जो वाटर कंटेंट हम निकालते हैं, इसको प्रैक्टिकल करने से, ये प्रैक्टिकल और ये प्रैक्टिकल करने से आपको और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता। एंड दैट पर्टिकुलर लिमिट, दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट वेयर व्हेन यू आर रोलिंग द सॉइल, when you are rolling the soil and it gets I mean what water content you will get, no, that is called plastic state। और यहाँ solid state से semi solid state को जो आता, it is shrinkage limit। महेश you are asking, so what is shrinkage? shrinkage limit में क्या होता मालूम है? ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जहां उतना डालने के बाद ये फुल्ली सैचुरेटेड हो जा रहा, यहाँ पर फुल्ली सैचुरेटेड हो जा रहा, मिनिमम वाटर कंटेंट जिसको डालने के बाद ये फुल्ली सैचुरेटेड हो रहा, मतलब सैचुरेशन होने के लिए जितना पानी चाहिए वही यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट है। लेकिन मिनिमम, ऐसा नहीं क्या बहुत सारा पानी में डाल दिया तो सब अपने आप उसमें सबमर्ज हो जाता, ऐसा नहीं। जो पानी डालने के बाद हमको जितने वाइड्स है वहां पर जाके पानी बैठ जा, जाके बैठ के वो सैचुरेटेड हो रहा फुल्ली। जैसा आप आटा ले रहे तो रोटी बनाने के लायक बन रहा, हर आटे के वाइड्स में जाके पानी बैठ जा रहा, तो वैसा स्टेट जो है उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। वो जो वाटर कंटेंट या ऐसा मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसके कम करने से वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, उसको भी क्या बोलते हैं? श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट के दो डेफिनेशंस है, मिनिमम वाटर कंटेंट जिसके ऐड करने से वो फुल्ली सैचुरेटेड हो रहा, ये पहला है। दूसरा, ऐसा मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसको कम करने से भी वॉल्यूम चेंज। देखिए यहाँ के बाद, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा, क्या मतलब? ये स्टेज को रीच होने के बाद आप पानी कम भी करते गए ना तो भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। इवन आप पूरा भी पानी निकाल दिए, सॉइल को ड्राई भी रखे, ये सॉलिड स्टेट में रहता तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब अगर से यहाँ पर आप सॉलिड चेंज नहीं हो रहा तो ये जो लिमिट है उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। जो श्रिंकेज लिमिट मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जिसके कम करने से वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो वो श्रिंकेज लिमिट है। या ऐसा मिनिमम वाटर कंटेंट, उतना वाटर डालने के बाद सॉइल अगर से सैचुरेटेड हो रहा तो देन आल्सो इट इज व्हाट यू कॉल श्रिंकेज। आई होप मैं बहुत कोशिश किया आपको समझाने की, आपको समझ में आया होगा जो केयरफुली सुने। तो ये मैं आपको बोलता हूँ, मैं चाहे तो इसको मैं आधे घंटे में ये पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूँ। कंसिस्टेंसी, फटाक से आपको कंसिस्टेंसी, देयर आर 4 स्टेजेस, देयर आर 3 लिमिट्स, प्लीज टेक डाउन द डेफिनेशन। आप फटाक से लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट के डेफिनेशन लिख सकते, एग्जाम में लिखते, पास भी होते, प्रॉब्लम भी करते। बट मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट हो, और ऐसा हर सब्जेक्ट का आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते गए, समझ में आपको आते गया, सो व्हाट इज इट, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। कुछ डाउट नहीं है ना किसी को? आप तो प्लीज कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते जाओ आप लोग। आई विल गो फॉर नाउ द नेक्स्ट आई मीन नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट का डेरिवेशन है, मैं उसको जाऊंगा। प्लीज सब लोग ये फिगर बना लो, ये थोड़ा उतना क्लियर नहीं आया, हाँ ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, श्रिंकेज लिमिट का एक डेरिवेशन है, मुझे ये डेरिवेशन करना है ये। हाँ देखिए उससे पहले मैं आपको यहाँ पर आता हूँ। देखिए हम अब सोनाली यू आर आस्किंग, सो व्हाट इज द कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी को हम सॉफ्ट, स्टिफ और हार्ड बोलते हैं। कंसिस्टेंसी इज डिनोटेड बाय सॉफ्ट और स्टिफ और हार्ड। जब ये सॉलिड स्टेट्स में रहता बेटा, इट इज हार्ड। कंसिस्टेंसी इसका हार्ड है बहुत, मतलब ये डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर सकता।
एंड व्हेन इट इज इन द प्लास्टिक, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक की तरफ जाता तो वहां पर स्टिफ हो जाता। स्टिफ मतलब कीचड़ रहता, देखिए थोड़ा थोड़ा स्टिफ है बोलते हैं आप लोग, स्टिफ वर्ड यूज करे होंगे आप। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में स्टिफनेस प्रॉपर्टी पढ़े, स्प्रिंग्स पढ़े, टॉर्शन पढ़े, है ना? So you should know what is stiff here. The second is it is stiff, and third consistency, when it is mostly near about liquid limit, it is called soft. The third one is called soft. So hard, stiff, and soft. These are the measures of what I mean consistency. And what I was telling is, so if you draw the graph of shear stress versus shear strain, this is shear stress, this is stress strain का डायग्राम बनाए नहीं आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, उसी तरह मैं अगर से यहाँ shear stress और shear strain का डायग्राम बनाऊंगा तो लिक्विड लिमिट का कर्व ऐसा आएगा, प्लास्टिक लिमिट का कर्व ऐसा आएगा, और सॉलिड और सेमी स्टेज का, इस लिक्विड स्टेट का, ये प्लास्टिक स्टेट का, और ये सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट का ये ऐसा कर्व है। तो यहाँ पर ये ज्यादा रहता शेयर स्ट्रेस। तो प्लीज ये ग्राफ भी आप उतार लो, इसके ऊपर भी एक बार गेट में कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो ये ग्राफ बना लो, उसके बाद ये 3 टर्म्स लिख लो, ये सब जरूरी है, उतार लो। So once again I remind you please, in the GATE examination GT को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, और सिलेबस देखेंगे ना आप तो दूसरे सब्जेक्ट से जीटी का सिलेबस बहुत कम है, लेकिन टेक्निकली आपको पढ़ना पड़ता है इसको। अब आप देखेंगे एफएम कितना है, FM1 FM2 पढ़े तो आपको 4 मार्क्स नहीं मिलते, 5 मार्क्स का भी नहीं आता। एफएम पढ़ना, वाटर रिसोर्सेस पढ़ना, तब कहीं जाके दूसरा सब पढ़े तो 7-8 मार्क्स का आता, जबकि आपको स्ट्रक्चर इतना पढ़ना पड़ता है, 5, 6, 7 सब्जेक्ट है, तब जाके 22 मार्क का होता, 22-24 मार्क का। लेकिन जीटी का सिलेबस, GT2 तो कुछ भी नहीं है, GT2 के तो 1-2 चैप्टर है, मैं आपको एक्स्ट्रा लेके गेट का प्रिपरेशन करा दूंगा, लेकिन GT1 आप परफेक्ट कर लेंगे तो आपको 15 मार्क का जीटी का है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और मेरे ख्याल से गेट का नोटिफिकेशन आया कल, और फॉर्म भरने के डेट स्टार्ट हो गए सितंबर से है शायद, पता नहीं, देखो जरा और देख के आप इंटरेस्ट से भरो। मैं आपको भी कॉल करने वाला हूँ, आई एम नॉट गेटिंग योर नंबर्स, पर्सनली आप लोगों से बात करने वाला हूँ। आप तो बात करते नहीं, सर को कभी फोन करते नहीं, मैं ही करता हूँ आपको। तो प्लीज प्लीज वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, एक एम रखो, और इस बार आपको गेट क्वालिफाई करना ही है, ओके? इस बार आपको गेट क्वालिफाई करना ही है। तो प्लीज टेक डाउन दिस वन, एंड आफ्टर दिस हो सके तो हम लोग, और एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, थोड़े एक्स्ट्रा क्लासेस हम लेना पड़ता, किसी का तो सिलेबस किसी का ज्यादा हो गया, क्या बोलो मुझे, उस टीचर को बात करके मैं कुछ मतलब पीरियड्स ले लेंगे हम लोग जीटी के लिए, बाद में लेंगे, अभी नेक्स्ट मंथ में लेंगे, अभी एक बार ये होने दो, ये मंथ ऐसा ही चलने दो। ये मंथ का प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अगला सैटरडे 15 अगस्त है, उसके बाद अगला सैटरडे फिर गणेश चतुर्थी है, 2 सैटरडे के 2-2 घंटे फिर चले जाएंगे, तो गेट का सिलेबस करने में जरा प्रॉब्लम होता मेरे को। नेक्स्ट मंथ में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, और जहां तक एप्टीट्यूड का सवाल है उसको भी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हम आपको नवंबर-दिसंबर तक मैं पूरा गेट का सिलेबस करना चाहता हूँ। So again you take a break of few minutes, so we will go for next derivation of shrinkage limit in the next class.